Hello students, I hope you are well at your home during this lockdown period. We started with chapter number 1 of class 10 science. So today we'll be taking the topic balanced chemical equations. In this topic we'll study three things. First, what is the meaning of balanced chemical equations? Second, what is the need of chemical equations to get balanced? Third thing, how to balance those chemical equations. Now first thing, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इफ आई एम राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन में एरो होता है, तो थिंग्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन राइट हैंड साइड दे शुड बी सेम इन नंबर ऑल्सो एंड द टाइप ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग आयरन ओवर हियर, तो एरो के लेफ्ट साइड पे अगर आयरन एक है और एरो के इस साइड पे भी आयरन ही होना चाहिए और एक होना चाहिए. आई होप यू आर क्लियर विद दिस टर्म. अब हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2 आर्ट है, तो एरो इस साइड पे भी हाइड्रोजन कहीं ना कहीं होना चाहिए और वो भी 2 नंबर होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ओवर हियर हाइड्रोजन इज हैविंग 2 एटम्स ओवर हियर. क्लियर विद दिस टर्म? नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल इक्वेशंस टू गेट बैलेंस्ड? सी, एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ वांट्स टू बिकम स्टेबल, so to getting balanced this way is one form of the stability that they take. Moreover, there is a law of conservation of mass. What does this law say? According to this law, mass can neither be created nor be destroyed, but you can convert it from one form to another. So things are, they should be same over here and here also, but उनकी forms अलग है. जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, but यहाँ पे हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस. पर स्टिल हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, और नंबर भी दोनों सेम है. देखो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2. ओके, now coming on the third topic, how to balance chemical equations. But before that, we are having this example. We'll see whether this is balanced or not. So how to check whether things are balanced or not? This side, what do we call this side of the arrow? We call it as reactants, or we call it left hand side. This side is products, and in short we can call right hand side of the arrow. So I've made a table over here. So you make a table for any equation. So left hand side, right hand side. So now over here you will write the elements and atoms. Okay, elements you particularly you will be writing. So which element is present over here? This side of the arrow, iron. So I have mentioned iron. Next is hydrogen. I have mentioned over here. Sulfur I have mentioned over here. Oxygen I have mentioned over here. Just verify it once whether things are same on this side also or not. But they will be same. Same elements you will be noticing over here also. Now next thing is you start counting now. अब काउंट करके यहाँ लिखते जाना है हमें. ठीक है, हमने देखना कि आयरन जो है, ठीक है, इधर कितने आयरन के एटम्स और इधर कितने हैं. ठीक है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. कितने इधर है आयरन की? 1. यहाँ पे कितने हैं? 1. सो आई हैव रिटन ओवर हियर. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन. हाउ मेनी आर हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? 2. हाउ मेनी ओवर हियर ऑन द राइट हैंड साइड? अगेन 2. सल्फर ओवर हियर इट इज 1. ओवर हियर अगेन इट इज 1. ऑक्सीजन दिस साइड इट इज 4. ओवर हियर इट इज 4. So it means the things are same. ठीक है, अब हमारे पास एटम्स भी सेम थी, आई मीन टू से एलिमेंट आल्सो यू कैन सी, वो चीजें भी सेम है, उनका नंबर भी सेम है. इट मींस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. आई होप नाउ यू कैन टेल वेदर पर्टिकुलर इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट बाय फॉलोइंग दिस फॉर्मूला. ओके, जस्ट मेक अ चार्ट, count the number of atoms left hand side and right hand side. If the things are same, then it means it's a balanced equation. But if the things are not same, then you have to follow certain rules to make that equation balanced, and we'll start with those rules now. So for that I'll take an equation that is not balanced, or it is an unbalanced equation I'll be taking over here. So I'll go according to the NCERT syllabus. In that we are having an equation. I'll mention that equation over here. Iron reacts with steam to form iron oxide along with this hydrogen gas. So this is the equation that has been taken in your book. We'll just check it once, just cross checking will do whether it's balanced or not. यहाँ पे आयरन है, ठीक है, 1 है, यहाँ पे कितने हैं? 3. So first step only tells us this is not a balanced thing. So we'll balance it. Now number 1, what is the first step of balancing? पहला स्टेप है, आपको जो जो ये दिख रहा है, ओके, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, इनके अराउंड जो आपको क्वेश्चन मिला है उनके अराउंड आप बना दीजिए बॉक्सेस. फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि आपको इनके अराउंड क्या बनाने हैं? बॉक्सेस. यू विल मेक बॉक्सेस. ओके, और इन बॉक्सेस में
इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, ओके, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग इन दीस बॉक्सेस, जो भी आप मैनेज करोगे उनके बाहर लिखोगे, ओके। सो द फर्स्ट स्टेप इज मैंने बॉक्सेस बना लिए, क्लियर। क्वेश्चन जो भी है उसके अराउंड बॉक्सेस बना लीजिए, ठीक है। नाउ सेकंड, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप सेज you have to just say कितने कितने, I mean to say you have to make a chart over here, okay, just make a chart कितने कितने क्या क्या चीजें हैं। For example, I'll start with over here iron, here it is हाइड्रोजन, आयरन भी लिख लिया, हाइड्रोजन भी लिख लिया, ऑक्सीजन भी लिख लिया। Now I look for left hand side and right hand side, okay, iron, how many iron are left hand side? 1, राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 4। ध्यान चलिए। सो सेकंड स्टेप इज पहले टेबल बना लीजिए, एटलीस्ट आपको पता हो क्या क्या चीजें बैलेंस है और क्या क्या चीजें बैलेंस नहीं है। सो ओवर हियर आर यू क्लियर? ठीक है, अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब ये स्टार्टिंग क्वेश्चन की फॉर्म थी कि क्या चीजें हैं क्या नहीं। अब इन सब में से ये लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड भी, राइट हैंड साइड भी। अब सेकंड रूल क्या कहता है? सबसे पहले ये देखो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ओके। सबसे बड़ा क्या है इन दोनों में देखना आपको, यू डोंट हैव टू सी वन साइड ओनली, ओके। दोनों साइड में देखो कौन सा नंबर बड़ा है, सबसे पहले उसे बैलेंस कर दीजिए, देन योर हाफ द वर्क इज डन ओवर हियर। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4, ओके। 4 सबसे बड़ा नंबर है। 4 किसके लिए है? इट इज फॉर ऑक्सीजन। सो हम क्या करेंगे? अब स्टार्ट बैलेंसिंग विद ऑक्सीजन। नाउ द थर्ड स्टेप इज विल बैलेंस ऑक्सीजन, क्लियर। सो थर्ड स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अगेन वी हैव टू मेक अ टेबल, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टेबल, देन वी लेट यू नो। अब ऑक्सीजन का टेबल बनाएंगे। अब ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में कितने हैं? एरोमेटिक इनिशियल, और फिर उसके बाद बैलेंस के बाद कितना बैलेंस हमें करना है? रिएक्टेंट्स, products, and in this we are talking about oxygen, okay। सो हमें पता तो लगी क्या करना है इसमें। सबसे पहले ये नंबर डिसाइड करना है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप इज विच इज थर्ड स्टेप इन बैलेंसिंग। जो हमें नंबर निकाला था सबसे बड़ा, उस चीज को बैलेंस करना है। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने जा रहे हैं यहाँ पे, और विल बी बैलेंस। अब देखो हमें देखना कि पहले, इनिशियल का मतलब होता है पहले ऑक्सीजन के कितने हैं रिएक्टेंट्स वाली साइड। नाउ लुक ओवर हियर, सबसे पहले रिएक्टेंट्स वाली साइड चलते हैं। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 1। और वही पहले प्रोडक्ट्स में कितने हैं? 4। ये हमने पहली वाली कंडीशन लिखी जो क्वेश्चन में है, या फिर जो हमारे पास प्रेजेंट सिचुएशन में है। तो पहले 1 थे और ये 4 है। अब बैलेंस का क्या मतलब है? हमें दोनों साइड इक्वल करना है। सो टू बैलेंस, तो बैलेंस करने के लिए व्हाट विल डू इज, अब देखो हम 4 को 1 तो नहीं कर सकते, दैट्स नॉट इन आवर हैंड, बट हम 1 को 4 बना सकते हैं हम ऐसे। अब देखो बैलेंस करने के लिए 1 आई राइट ओवर हियर और मल्टीप्लाई। ऐसे कौन से टर्म, ऐसे कौन से डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 4 बन जाए? व्हाट शुड बी देयर? 4, 1 4 जा 4। तो यहाँ पे कितना? इसमें तो सेम ही रहेगा 4। इट मींस बैलेंस करने के लिए जहां पे 1 था मुझे क्या बनाना है? वहां पे 4। और एक और चीज याद रखो, अब देखो हमारी कौन सी इक्वेशन थी? आई राइट इक्वेशन ओवर हियर, Fe plus H2O gives rise to Fe3O4 plus H2। हमने साइड्स पे क्या बनाए हैं? बॉक्सेस। And do one thing, I just write it a little bit bigger so it will be easy for you also. So boxes I'll make over here. बॉक्सेस लगाना मत भूलना, अदरवाइज यू व्हाट यू विल डू इज, तो बीच में आप चले जाओगे बॉक्सेस के एंड यू विल मेस अप विद द फॉर्मूलाज। ओके, सो हमें 4 लगाना है, 4 वी हैव टू पुट, ओके। हमें रिएक्टेंट साइड पे 4 लगाना है। अब देखो रिएक्टेंट साइड पे कैसे 4 लगाओगे? यहाँ तो आप लगा नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन तो यहाँ पे है, अब इसको निकाल भी नहीं सकते। सो 4 लगाना है। नेवर पुट 4 ओवर हियर, ऐसे नहीं लगाना है हमें यहाँ पे। What can we do is we can put it as a coefficient, means हम सिर्फ यहाँ 4 लगा सकते हैं, ठीक है। जब भी बैलेंस करेंगे हम सिर्फ इनके फ्रंट पे कोफिशिएंट्स पे लगाते हैं। कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं यहाँ पे 4 लगाती हूँ, नाउ अगेन ऐसी
अभी बैलेंस हो जाएगी क्योंकि मुझे 4 यहाँ लगाना था, बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए 4, यहाँ पे कितने हैं 3 till here. Now we'll move to the next fourth number. Now I'm going to rub this. हम फोर्थ नंबर पे जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप इज हमारे पास अब ऑक्सीजन तो वी आर डन। अब हमारे पास क्या क्या रह गया, एक हमारे पास रहती है आयरन और एक हमारे पास रहती है हाइड्रोजन। इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, देन विल स्टार्ट फर्दर विद दैट। नाउ फोर्थ स्टेप इज एनीथिंग यू कैन टेक, ईदर आयरन और ऑक्सीजन। नाउ व्हाट आई डू इज आई काउंट आयरन ओवर हियर, हियर इट इज 1, हियर हाउ मेनी आर देयर 3, ओके ओवर हियर। तो मैं क्या करूंगी, अब मेरे को जो ज्यादा लगेगा आई गो विद दैट, दैट विल मेक द थिंग्स इजियर। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, अब देखो हाइड्रोजन कैसे बताओगी, H2O। अब कितने हाइड्रोजन है 2, बट इसके बाहर 4 लग गया, इट मींस 4 2s are 8। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर हियर 8, इधर 8 है और इधर हाइड्रोजन आई जस्ट मेंशन ओवर हियर। तो मैं हाइड्रोजन के साथ जाऊंगी बिकॉज हाइड्रोजन ज्यादा है। ओके, सो हियर आई मेक रूल फॉर, आई एम गोइंग फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट, आई एम राइटिंग ओवर हियर हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के इनिशियल मतलब पहले क्या है, पहले डजंट गो विद द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अब मत जाना जो प्रेजेंट सिचुएशन में, अब हमारे पास ये आधी बैलेंस्ड इक्वेशन मिल चुकी है हमें जब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। सो हम इस इक्वेशन में देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन हैं पहले इनिशियल में। आई एम राइटिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, रिएक्टेंट से लिखूंगी अब राइट हैंड साइड। ओके, अभी हमें इनिशियल बताएंगे, इनिशियल, और उसके बाद टू बैलेंस, क्या क्या बैलेंस करना है हमें। अब इनिशियल देखेंगे कितने हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे, 4 2s are 8, हियर आर 8। राइट हैंड साइड पे कितना हाइड्रोजन है 2, क्लियर। अब देखो बैलेंस क्या करना, हमें राइट हैंड साइड बैलेंस करनी पड़ेगी। अब बड़े को तो छोटा नहीं कर सकते हम, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे कुछ करना है, 2 है, अब 2 को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करो कि आंसर आ जाए 8। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई आप करो आंसर आएगा 8, नो दिस, स्टार्ट विद द टेबल ऑफ 2, 2 4s are 8। तो इसका मतलब अगर मैं 4 लगा देती हूँ तो यहाँ पे फिर बैलेंस हो जाएगा। ओके, सो राइट हैंड साइड पे मुझे बस 4 लगाना है हाइड्रोजन के आगे। अब देखो राइट हैंड साइड पे जाएंगे, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। राइट हैंड साइड पे हमें क्या लगाना है 4, कहाँ लगाना है जहां पे भी हाइड्रोजन है। डू यू सी हाइड्रोजन ओवर हियर, आपको दिख रहा है यहाँ पे, नो, हियर वी हैव हाइड्रोजन। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे क्या लगा दूंगी 4। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब यहाँ पे 4 लगाने से बराबर हो गई चीजें, देखो 4 2s are 8, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स ओवर हियर 8, हियर आल्सो 8। सो हमारा एक और कंप्लीट हो गया, वी डिड ऑक्सीजन अर्लियर, देन वी डिड हाइड्रोजन। नाउ थर्ड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर जस्ट लेफ्ट विद आयरन। सो व्हाट आई डू ओवर हियर इज, मैं ऐसे करती हूँ, इस चीज को रब कर देती हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन को रब करके मैं सीधा डायरेक्टली आयरन का लिखती हूँ। फिफ्थ स्टेप इज आयरन, हम आयरन की बात करेंगे, ठीक है। कीप इन माइंड टेबल ऐसे ही बनाना ताकि दैट्स इजी फॉर यू, द टेबल फॉर्मेट इज सेम, टेबल का सेम फॉर्मेट है, बस बीच में एटम्स वगैरह में चेंज कर रही हूं, एटम्स और एलिमेंट्स आई एम चेंजिंग देम। ओके, सो आयरन, लेट्स स्टार्ट विद आयरन। हाउ मेनी आयरन ऑन लेफ्ट हैंड साइड 1, दिस इज 1। हाउ मेनी आयरन ऑन राइट हैंड साइड, वी आर हैविंग 3 लेफ्ट साइड, ठीक है। आयरन की बात करें इनिशियल, मतलब जो हमारे पास अब आधी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये हमारे पास अब बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें ऑक्सीजन इज बैलेंस एंड हाइड्रोजन इज आल्सो बैलेंस्ड। सो इसमें हम देखेंगे इनिशियल स्टेज पे क्या है। इस इक्वेशन में क्या कितने आयरन है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1, ये 3 यहाँ पे 3 है, लिख लिया। अब देखो इनमें से बड़ा कौन सा है 3, तो ये ऐसे लिख दूंगी क्योंकि मैं बड़े को तो कम नहीं कर सकती, और जो पहले वाला है उसको बनाऊंगी मैं बड़ा। बाय दैट 1 आई हैव रिटन ओवर हियर। अब कैसे किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आ जाए 3, यू नो दिस थिंग 3। तो मतलब अब मुझे बस 3 लगाना है आयरन के आगे, किस साइड पे लगाना है, रिएक्टेंट वाली साइड पे मैं 3 लगाऊंगी। सो दीस आर द रिएक्टेंट्स, सो 3 आई टोल्ड यू, हम कोफिशिएंट्स की तरह लगाते हैं, हम 3 यहाँ नहीं लगा सकते। सो व्हेनेवर यू बैलेंस, आप कोफिशिएंट की तरह, कोफिशिएंट का मतलब है किस चीज के आगे जैसे जो लग जाए, और इसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो मैंने बस आगे लगाए थे, इट मीन्स now I've got the balanced equation. Now what I'll do is मैं इन सबको erase करूंगी, then I'll write this equation so that you can just check it once. So the sixth step, fifth step we are done. So this is the sixth step. What is the sixth step? I'm writing the same equation over here. 3Fe plus 4H2O gives rise to Fe3
as 4H2. Clear? So this is the equation. I am going to rub this. See, the things are same. You can just tell it once. 3Fe, 4H2O, Fe3O4, 4H2. I have just taken out those boxes because what I feel is it's balanced. Okay. Now we'll just verify. So sixth step is, if you feel that your balanced equation, you have reached that balanced equation, just check it once. Again, you know the rule how to check it. So left hand side and right hand side. This is the last step, okay? We are just cross checking it whether it's balanced or not. Which all are the elements? Iron, hydrogen, oxygen. Now iron over here, how many iron on left hand side? 3. How many on right hand side? 3. Hydrogen, how many on left hand side? Hydrogen are 4 2s are 8. 8 over here. How many over here? 4 2s are 8. Third, oxygen, how many oxygen over here? 4. How many over here? 4. So they are balanced. So now we have reached a balanced equation by following simple 6 steps. Okay. So you have to do this. And now further thing. What is the name of this method? This is known as hit and trial method. Hit and trial method means we are just putting trials. हम बस check कर रहे हैं यहाँ पे ये कम है. We are putting this and then we are cross checking it. This is hit and trial method. Okay. Now to make any equation more informative, we also write the states of the things. So over here, iron is taken in solid form. This is taken in gaseous form. Over here again we have solid. This is a gas. Now look over here. Iron is in the solid form. Now notice one thing over here that's strange for you. H2O is water. But I have written in bracket over here gas. So in any equation, if you encounter this thing, that gas is written in bracket to represent its physical state, and what's the particular thing used? Water. It means which form of water we are using over here? We are using steam over here. Okay. Then again solid form, then gaseous form. So that's all about the topic today. Please do follow these rules. These are very important. These are going to help you every time in chemistry. Thank you so much. Stay home. Stay safe.